Yes. So as you people know, sir, yesterday we saw the preparation and properties of our nitrogen. So today we will move ahead and we will try to understand one more important preparation of a compound of nitrogen, that is your ammonia. Remember, ammonia is a very important chemical which is used vastly in industries, especially in the fertilizer industries. Okay, right? So the preparation method of this is very important to understand. So there are two ways in which we can prepare. If we want to prepare it, say for example, in the lab, how will we prepare it? And how naturally our plants or the soil gets ammonia, we will also talk about that. And then industrially how to prepare it, even we will have a look at that. So first of all, let us see how in soil the decay of organic matter. Okay, for example, urea. Many a times you must be listening this, or you must have heard about this, that urea has been added to your soil in the farms, in the farmlands. Okay, now urea has been added by the farmer. They buy urea in a large quantity. Now why? If the soil has turned acidic, and in 10th class while studying pH, potential of hydrogen, okay, acid basis Yes, and sir. salts में वहां clearly हम लोग पढ़े थे how the pH of the soil can help or can destroy the crops. So here urea is being added into your soil in order to increase the basicity of the soil. So how do we do that? So first of all, remember sir, what is urea? Okay, urea is NH2 C double bond O NH2. This is urea. NH2 C double bond O NH2 is nothing but our urea. When we add this urea along with water, and then you drop it in the soil. Okay, now what will happen? First of all, NH2 C double bond O NH2 will react with water to form ammonium carbonate. To form what, sir? Ammonium carbonate. NH4 whole 2 CO3. Ammonium carbonate. It forms NH4 whole 2 CO3. That is your ammonium carbonate. This ammonium carbonate further decomposes. Okay, यहाँ पे क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा. ये फर्दर डिकम्पोज होगा और हम लोगों को क्या प्रोड्यूस करेगा सर? 2 moles of ammonia देगा. Along with that, जो वाटर हम लोग पहले ऐड किए थे वो वापस हम लोगों का वाटर रिलीज होगा. एंड along with that, carbon dioxide will be released. Along with that, carbon dioxide will be released. Now, do we people understand this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, sir, urea when added to water, first of all, it is forming ammonium carbonate. Ammonium carbonate forms an equilibrium where it gives us ammonia, water, and carbon dioxide. Where it gives us ammonia, water, and carbon dioxide. So it is very important for us to understand, because in our farmlands or in our especially our farmers mostly use this urea in order to turn their acidic soil or the soil which is not enough fertile into basic. So few people who are rich, they take urea and add it. Few people who are poor will try to collect cow dung and try to add it. Now tell me, cow dung has also got ammonia content in it. Generally, the human waste and the animal waste, that can be like your urine, or that can be your stool, or the cow dung, or any other thing, generally contains a lot of ammonia. Okay, that is why when we go through the public toilets, the stinking smell is actually due to the presence of ammonia actually, right? ये आप लोग याद रखेंगे. So the first preparation method is from urea, add urea into water, it will give ammonium carbonate. This ammonium carbonate will further form an equilibrium to produce ammonia, okay, along with water and carbon dioxide. क्या ये simple and easy है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now let us see
in the lab, if I want to prepare, then what other methods can I employ in order to prepare this ammonia? Let us see the second preparation method, and the second preparation method we will be seeing it, the laboratory preparation method. Now, how do we prepare ammonia? We will prepare ammonia from ammonium salt. From where do we prepare ammonia? We will prepare ammonia from ammonium salts. Obviously, ऐसा salts जिसमें ammonia present रहता है, वहीं से आप लोग ammonia produce कर सकते हैं. So we are taking ammonium chloride and we are trying to, okay, decompose it by treating it with caustic soda. So see, we are taking ammonium chloride, that is your NH4Cl, and we are treating it with caustic soda, that is your calcium hydroxide, CaOH whole 2. बताइए सर, क्या आप लोगों को यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? कैल्शियम, which is a second group element and highly electropositive, will immediately react with chlorine to form calcium chloride. सबसे पहले ये दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ये बताइए सर हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। यस सर, वो डबल Yes. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा सर। So calcium will immediately react with chlorine in order to form calcium chloride. Ammonium ion here in this case, in the presence of basic medium, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक H+ रिलीज करके क्या हो जाएगा सर? तो ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अमोनियम आयन जो मेरा मिला ना NH4+, ये क्या करेगा? एक एक H+ रिलीज करके ये खुद बन जाएगा एमोनिया। तो ये H+ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्या रिलीज किया? 2 OH-। तो मैंने क्या बोला? 2 NH4+ ले रहे हैं, मतलब 2 H+ एंड 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। तो ये H+ OH-, एक और H+ और OH- क्या बना देंगे हम लोगों को? 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड अलोंग विद दैट 2 मोल्स ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस होगा। कितने लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। कितना लॉजिकल एंड सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है सर। याद रखना भी बहुत ही आसान है। So if I am taking ammonium chloride and if I am treating it with caustic soda, that is your calcium hydroxide. First of all, calcium will take away chlorine and go out in order to form calcium chloride. And then, okay, the ammonium ion will release some H+ and it will give ammonia. This H+ will take away OH- in order to form water. So 2 moles of ammonium chloride will react with calcium hydroxide, that is your caustic soda, in order to produce your calcium chloride, water and ammonia. This is one more preparation method of your ammonia, right? So this we will be doing it in our lab. लैब में अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ट्रीट करने से हम लोगों को प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हो जाएगा। अमोनिया का स्मेल आप लोग ऑलरेडी देखे हैं, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी मैंने अमोनिया सोल्यूशन दिखवाया था। याद आ रहा है कुछ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया? यस सर। बहुत कम लोगों को याद होगा, मुझे पता है। यस सर। नाउ द थर्ड प्रिपरेशन मेथड, सेम अमोनियम सॉल्ट से ही प्रिपेयर करेंगे, बट एक और सॉल्ट भी हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। दिस टाइम से फॉर एग्जांपल आई एम ट्रीटिंग अमोनियम सल्फेट NH4 if I am treating ammonium sulfate with sodium hydroxide, ammonium sulfate with sodium hydroxide. Now tell me, यहाँ पे भी आप लोगों को क्लियरली एक चीज दिख रहा है कि नहीं? Highly electropositive sodium will immediately attack on SO4- to form Na2SO4. That means 2 moles of NaOH will react. चलो बहुत अच्छा बात है सर, Na2SO4 बाहर निकल गया। तो अब बताइए फिर से आप लोगों को यहाँ पे 2 OH- बच गया कि नहीं? Na+ निकल गया। अब 2 NH4+ भी बच गए। तो यहाँ पे फिर से एक H+ OH- लेके वाटर, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाएगा एंड अलोंग विद दैट 2 मोल्स ऑफ एमोनिया भी निकलेगा। डू वी पीपल अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन? यस सर। यस सर। Okay, so we can take any ammonium salt and we can decompose it, we can break it in the presence of a strong base like calcium hydroxide or sodium oxide. Okay, with calcium hydroxide is lime, sorry मैं तभी से caustic soda बोल दे रहा था इसको। calcium hydroxide lime and caustic soda NaOH, sorry for that mild confusion।
Okay, sorry for that. Calcium hydroxide is lime and sodium hydroxide is soda. Caustic soda is sodium hydroxide. मैं यहाँ पे शायद 2-3 बार caustic soda बोल दिया. Sorry for that. Okay, so we are having ammonium sulfate. We are treating it with NaOH. देखिए सर, दोनों के दोनों reactions काफी आसान है. सबसे पहले हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एक हैलोजन को या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को लेके चला गया, राइट? वो बना दिया एक सॉल्ट. वो जैसे ही एक सॉल्ट बन गया, 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल गए और एमोनिया जो है बाहर निकल गया. क्या ये आसान होगा याद रखना हम लोगों के लिए? यस सर. Yes, sir. Yes, वेरी sir. गुड. तो फिर से मेरे ही साथ सब लोग रिपीट करेंगे, क्लास में ही हम लोगों को याद हो जाए. नंबर 1, लेट अस सी द प्रिपरेशन फ्रॉम यूरिया. सर, यूरिया इज NH2C डबल बॉन्ड हो NH2, जिसको कि मैं NH2CO NH2 भी लिख सकता हूं. सर, पहले हम लोग लेके एमोनिया को वाटर में, सॉरी यूरिया को वाटर में ऐड करेंगे. सो यूरिया को वाटर में ऐड करने से क्या बनेगा, कौन बताएगा मुझे? Ammonium carbonate. Ammonium carbonate, NH4 whole to CO3, that is ammonium carbonate. Now this ammonium carbonate forms an equilibrium where what will happen, sir? It will release ammonia, it will release water, and along with that it will release carbon dioxide. Okay, so how many moles of water is it going to release? 1 mole of 1 mole water. only. Yes, but how many moles of ammonia? 2 moles of ammonia. 2 moles because of 2 moles. 2 nitrogens over there. Very good, sir. This was our first reaction. Now, second reaction. Sir, we can take any ammonium salt. So let us take one ammonium salt. We know ammonium chloride. We can treat it with lime, that is your calcium hydroxide. So let us treat it with calcium hydroxide, CaOH whole 2. देखिए, ऑलरेडी हम लोगों को रिएक्शन पता है. चलिए फटाफट बताइए, कैल्शियम क्या करेगा सबसे पहले? सर, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. कैल्शियम क्लोराइड. इसके बाद कितने मोल्स ऑफ एमोनिया बन जाएगा? So 2 moles of ammonia. 2 moles. एंड अलोंग विद दैट एक और बाय प्रोडक्ट क्या रहेगा? Sir, water 2 moles. 2 2 moles of moles. water. Very good. So now the third reaction in the lab only, once again, right? So ammonium sulfate ले लेता हूं मैं इस बार, NH4 whole to SO4, और मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ये कॉस्टिक सोडा है. ओके, सो नाउ Na will take away SO4, तो कितने Na लेंगे? 2 Na लेंगे. तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा Na2SO4. along with that क्या बन जाएगा सर? सेम 2 moles of water and 2 moles of water. वेरी गुड. सो अभी का अभी जो लोग याद किए होंगे उन लोगों का बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद हो जाएगा. क्लास का क्लास में ही याद हो जाएगा. सर ये इतना ही सिंपल सा चीज है. सो प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया वी हैव सीन either from urea or we have seen from some ammonium salts, ammonia containing salts. We are decomposing these ammonia containing salts in the presence of some strong alkalis like our calcium hydroxide or our sodium hydroxide. चलिए सर, ये तो बहुत अच्छा था हमारा लैब प्रिपरेशन मेथड के लिए, या फिर प्रिपरेशन मेथड इन स्मॉल क्वांटिटीज में ये काम आ गया हम लोगों को. बट what if I want to prepare in large quantities? That means if I want to prepare ammonia in industrially, then what I will do? So industrial preparation of ammonia is done, okay, by the Haber's process. Okay, industrially it is prepared by the Haber's process. So let us today understand the Haber's process properly. We all know the reaction of Haber's process actually. What is that? Nitrogen gas reacts with 3 moles of hydrogen gas to produce 2 moles of ammonia gas. ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ये जनरली इक्विलिब्रियम में रहता है. Now remember, this reaction is an exothermic reaction. Del H formation. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया 1 मोल ऑफ एमोनिया फॉर्म होने के लिए जो है, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है 2 मोल्स दिया हुआ है, बट मैं 1 मोल के लिए बोल रहा हूँ. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया जो है -46.1 किलो जूल पर मोल है. -46.1 किलो जूल पर मोल है आप लोगों का
ये तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत अच्छा बात है सर, सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत अच्छा बात। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू let us understand through Lee-Chatelier principle what should happen over here. Okay, see sir, ली चैटलियर प्रिंसिपल हम लोगों को क्या बता रहा था, ध्यान से देखिए आप लोग बहुत कुछ समझ जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहला चीज जो आप लोगों को पता चला कि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताइए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर लार्ज होने से प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या टेम्परेचर लेस या स्मॉल होने से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा? याद कीजिए जरा ली चैटलियर प्रिंसिपल। एक्सटर्नल टेम्परेचर हाई रहने से ओके एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन इजीली होगा, या एक्सटर्नल टेम्परेचर कम रहने से हमारा जो क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन इजीली होगा? कब होगा? लो सर। जितना लो हो सके उतना लो। यस सर, बहुत लो चाहिए। याद रखिए सर, क्या याद रखना है हम लोगों को सर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट विल बी रिलीज्ड, तो बाहर का टेम्परेचर जितना कम होगा हीट उतना इजीली रिलीज हो पाएगा, बिकॉज वी नो दैट हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सो दैट इज वाई बाहर का टेम्परेचर जितना लो होगा हीट उतना इजीली रिलीज हो सकता है और रिएक्शन जो है उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर आया। यस सर। यस सर। देखिए जिस जिसको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल याद भी नहीं है, मैं अभी रिपीट कर रहा हूं, राइट? तो अच्छे से ध्यान में रखिए सर, इन दिस पर्टिकुलर स्टेप we are simply saying you this thing, that exothermic reaction means energy has to be released. Energy has to be released means when will the energy get released? When the outside temperature is lesser than the temperature inside, तभी तो ये favorable condition होगा हीट को बाहर निकालने के लिए। सो दैट इज व्हाई टेम्परेचर लो होने से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवर करेगा। सो अब हम लोगों को सबसे पहला चीज समझ में आ गया कि सर हमारा एमोनिया प्रिपरेशन में, इंडस्ट्री में एमोनिया प्रिपरेशन जहां पे होता है वहां पे टेम्परेचर को जो है हम लोगों को लो रखना पड़ेगा। वेरी गुड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रेशर। व्हाट डू वी नो सर? Whenever we are talking about the pressure, if you increase the pressure, the reaction will move in that direction where less number of moles is present of gas, and if you decrease the pressure, the reaction will move in that direction in which more number of moles of gases are present. Yes or no? यस सर। यस। तो ध्यान से देखिए सर, प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 2, बट ऑन द रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कितने हैं? 4। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, तो मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना है या मुझे प्रेशर को डिक्रीज करना है? क्या करना है मुझे? डिक्रीज कर। डिक्रीज कर। डिक्रीज। डिक्रीज क्यों? कर। डिक्रीज करने से मोर नंबर ऑफ मोल्स जिधर रहेगा उधर चला जाएगा रिएक्शन, मतलब यस सर, रिएक्शन वही इधर आ जाएगा। डिक्रीज क्यों करूंगा मैं? शुभम रथ सर इंक्रीज होगा। हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। प्रेशर को जितना इंक्रीज करने से जिधर लेस नंबर ऑफ मोल्स है, जिधर लेस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स है उधर जाएगा तुम्हारा जो है रिएक्शन। तो बताइए सर, प्रेशर हाई रखूंगा तो लेस नंबर ऑफ मोल्स, मेरा प्रोडक्ट के साइड 2 मोल्स है वेरस मेरा रिएक्टेंट के साइड 4 मोल्स है, तो मुझे अभी क्या चाहिए? मुझे ज्यादा से ज्यादा एमोनिया चाहिए, तो मैं प्रेशर को क्या रखूंगा सर? इंक्रीज करके रखेंगे। हाई रखेंगे। हाई रखेंगे। तो प्रेशर को हम लोग हाई रखेंगे। क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या हम लोगों को ली चैटलियर प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट सा एप्लीकेशन पता चला कि नहीं? एक इंडस्ट्री में बिना कुछ जाने हम लोग सिंपल ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज करके हम लोगों ने बता दिया
देखो बेटा, तुमको ना प्रेशर बहुत हाई मेंटेन करना पड़ेगा और टेम्परेचर बहुत लो मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके तुमको बहुत ज्यादा एमोनिया मिलेगा। वो इंडस्ट्री का ओनर बोलेगा बाप रे तुम्हें इतना सारा कैसे पता है, तुम बहुत जीनियस हो गए। नहीं, मुझे सिर्फ ली चैटलियस प्रिंसिपल पता है, मुझे सिर्फ इस इक्वेशन पता है, N2 + 3H2 gives rise to 2 ammonia, सब कुछ गैसियस फेज में है, मुझे ये पता है और ली चैटलियस प्रिंसिपल पता है, मुझे और कुछ नहीं पता है। बट मैं इतना कुछ इंडस्ट्री में बता सकता हूँ कि टेम्परेचर लो होने से और प्रेशर हाई होने से जो है मेरा एमोनिया ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so in this industry along with high pressure and a low temperature, okay, so low temperature मतलब around कितना यूज करते हैं हम लोग? low temperature मतलब approximately हम लोग 700 केल्विन पुट करते हैं। 700 केल्विन इंडस्ट्रियल वाइज काफी लो है सर, याद रखिए 700 केल्विन मतलब आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली 430 डिग्री सेल्सियस समथिंग, जो कि वी ह्यूमंस के लिए तो काफी लार्ज टेम्परेचर है, बट इंडस्ट्रियली अगर हम लोग देखेंगे तो काफी कम टेम्परेचर है ये। और लेकिन प्रेशर काफी हाई मेंटेन करेंगे। कितना मेंटेन करेंगे हम लोग? 200 into 10 to the power of 5 pascals मेंटेन करेंगे हम लोग, which is equal to nothing but 20 megapascals। मेगा 10 to the power of 6, so 20 megapascals बोल सकते हैं इसको, या फिर हम लोग 200 into 10 to the power of 5 pascals बोल सकते हैं। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना हाई प्रेशर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं? एंड टेम्परेचर जो है 700 केल्विन दैट इज लो मेंटेन कर रहे हैं। सर क्या इतना ही यूज करेंगे या फिर कुछ और यूज करेंगे? याद रखेंगे आप लोग, हम लोग कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, बिकॉज कैटलिस्ट विल ट्राई टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। कैटलिस्ट, आप लोगों को याद होगा हम लोग 2-3 बच्चों को जंगल में छोड़ दिए थे, उन लोगों को जंगल क्रॉस करके बाहर आने के लिए बोले थे। कैटलिस्ट जब मैं समझाया था आप लोगों को, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस, सो विद द हेल्प ऑफ अ कैटलिस्ट वो लोग शॉर्टकट के थ्रू जंगल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है तो ये लोग जंगल के अंदर घूमते 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 रहेंगे, बाहर आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बाहर तो आ जाएंगे, पक्का आएंगे, लेकिन काफी ज्यादा इन लोगों को टाइम लगेगा बाहर आने में, राइट। सो यहाँ पे कैटलिस्ट हम लोग क्या यूज करेंगे? ध्यान से देखेंगे सर, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे आयरन ऑक्साइड and small amounts of potassium oxide and aluminum oxide, okay, iron oxide, along with small amount of aluminum oxide, alumina, Al2O3, and potassium oxide, that is your K2O, okay। So iron oxide along with aluminum oxide and potassium oxide, याद रखिए पहले यही एमोनिया बनाने के लिए हेबस प्रोसेस में फाइनली डिवाइडेड मॉलिब्डेनम यूज होता था पहले। अर्लियर मॉलिब्डेनम यूज करते थे सर लोग, बट आजकल हम लोग जो है इसके लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड अलोंग विद आयरन ऑक्साइड यूज करते हैं, राइट। अर्लियर फाइनली डिवाइडेड मॉलिब्डेनम वाज यूज्ड, but now we are using iron oxide along with aluminum oxide and potassium oxide। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Now once you have understood these things, let us understand the process properly। पूरा इंडस्ट्रियली ये प्रोसेस कैसे होता है हम लोग समझते हैं सर। तो सबसे पहले सर, थ्रू पाइप्स what we will do is we will try to pump hydrogen gas and as well as the nitrogen gas through the pipes, okay। Hydrogen gas and nitrogen gas are pumped through the pipes into a compressor। Where will we pump them? We will pump them into a compressor। So ये compressor क्या करता है? ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये compressor क्या करता है? एक मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, ओके, okay, so you're from which school? Okay, residential. In which school exactly?
Okay, fine then. Okay, do one thing. This is my WhatsApp number. Have you sent me your All right, sir. Sorry for that. I got a call now. One moment. I did a small mistake over here while drawing the diagram. Okay, you people can see this diagram in your textbooks also. Yes, sir. Everyone has got a textbook in front of you? Yes, sir. Sir. Yes, sir. So then have a look at your textbooks, sir. Okay, so drawing this diagram will be a little this thing for me, but you people can simply go through your textbooks. That will be a lot more easier. I will tell you the use of every single thing over here. Don't worry, but don't judge my diagram because that is very, very bad. Okay, right. सर वो So first of all, let कैटलिस्ट us के पास बोलो बेटा. सर वो कैटलिस्ट के पास जो पाइप आपने बनाया है वो वैसा ही है क्या सर? हाँ, वैसा ही रहेगा. वही तो मैं बोला कैसे क्या रहेगा वो बताऊंगा करके, मैं इसीलिए बोला. ठीक है, देखो. So first of all, we will pump nitrogen gas and hydrogen gas, okay, into a compressor. This is a compressor, sir, because हम लोग क्या बोले थे that the pressure has to be maintained very very high. बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, हम लोग प्रेशर चाहिए हम लोगों को इस रिएक्शन को करने के लिए. तो हाई प्रेशर मेंटेन करने के लिए हम लोग एक कंप्रेशर के थ्रू पास करते हैं हम लोगों का नाइट्रोजन एंड एज वेल एज हाइड्रोजन को, राइट. सो ये कंप्रेसर है क्या? क्या आप लोगों ने कभी बाइक पे या कार पे अपना पंप भरवाने के लिए आप लोग गए हैं? कभी पंप फिल करने के लिए कभी आप लोग गए हैं? Yes, sir. तो आप Yes, लोग sir. वहां पे एक यूनिट देखे होंगे जो एक बड़ा सा यूनिट रहता है जिसको एक जनरेटर के जैसा दिखता है, जिसको वो लोग ऑन करते हैं और वहां से जो है कंप्रेस्ड एयर बाहर आता है. दैट इज एक्चुअली अ कंप्रेसर. ओके, एटमॉस्फेयर से वो एयर को लेता है, कंप्रेस करता है और हाई प्रेशर में आपके टायर्स के अंदर उसको पंप करता है. उसी तरह का एक कंप्रेसर रहता है सर हम लोगों के पास. उस कंप्रेसर को लेके हम लोग जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अच्छे से मिक्स करके वहां पे 20 मेगा पास्कल्स तक हम लोग प्रेशर क्रिएट करते हैं. तो हाई प्रेशर का नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन जो है निकलेगा और वो चला जाएगा आप लोगों का कैटालिटिक चैम्बर में. कहाँ चला जाएगा? कैटालिटिक चैम्बर में. कैटालिटिक चैम्बर जो है हम लोग का कितना टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं? 700 केल्विन पे मेंटेन करते हैं. कैटालिटिक चैम्बर में आप लोगों का एल्यूमिनियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड के साथ हाई प्रेशर में जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आ रहा है वो रिएक्ट करते हैं टुगेदर एंड वो प्रोड्यूस करते हैं आप लोगों का एमोनिया. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो ये जो एमोनिया प्रोड्यूस होता है सर, ये जो पाइप, बोल कोई कुछ बोल रहा है?
No, sir. Okay. ये जो ammonia produce होता है sir, we keep a pipe which is having a lot of curls. At the end जो है, हम लोग एक पाइप को बहुत सारे टर्न्स लेके हम लोग रखते हैं. क्यों? Because at high temperature जब अमोनिया बनता है तो ये गैसियस फेज में बनता है. हम लोग क्या चाह रहे हैं, ये टर्न्स एंड टर्न्स जो पाइप हम लोग रखेंगे, इसमें धीरे धीरे अमोनिया कूल डाउन हो जाए और यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाए सर, यहाँ पे हम लोगों को लिक्विड अमोनिया मिल जाए. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. तो अब समझ में आया शुभम, मैंने वो पाइप वैसे क्यों ड्रॉ किया जैसा है, तुम पूछे, हम तुमको समझ में आया अभी? Yes, sir. राइट. सो नाउ व्हाट विल हैपन, सी सर, हम लोग जब यहाँ पे रिएक्शन लिखे थे, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्मिंग एमोनिया, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे एक छोटा सा चीज सर. क्या देखे हैं आप लोग? ध्यान दीजिएगा. आप लोग देखे होंगे कि ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है. दैट मीन्स ये जो लिक्विड एमोनिया यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ से फिर से ये डिकम्पोज होके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बनके इस पाइप के थ्रू बाहर भी निकलेगा. ओके. सो जैसे ही ये बाहर निकलता है, यहाँ पे एक पंप है, इस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को वापस हम लोग पंप करके भेज देते हैं आप लोगों का कंप्रेसर के थ्रू, और कंप्रेसर से वो फिर से कैटलिस्ट के अंदर आ जाए. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दैट मीन्स जो इक्विलिब्रियम में अमोनिया डिकम्पोज होके वापस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना रहा है, उसको हम लोग वेस्ट जाने नहीं दे रहे हैं. वी आर अगेन यूटिलाइजिंग इट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस योर अमोनिया. लिक्विड अमोनिया को यहाँ पे एक टैप लगा हुआ रहता है, लिक्विड अमोनिया को आराम से हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं. Yes, Now, sir. कितने लोगों को ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आया? Yes, sir. I समझ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. One last time, I am repeating the whole thing. Please understand this. Sir, Haber's process, nitrogen gas is treated with hydrogen gas at high temperature. High temperature है? No, sir. Low temperature. वो industry At देखता है. low temperature and high pressure according to the Le-Chatelier principle. So at a low temperature and high pressure, we will be doing this reaction. So to achieve that high pressure and the low temperature, what we are doing, you see, first of all, nitrogen and hydrogen is pumped through a compressor. In the compressor, nitrogen and hydrogen is pushed out at a high pressure, that is 20 megapascals, that is around 200 into 10 to the power 5 pascals. Okay, at that high pressure, we are sending these gases into a catalytic chamber, which is maintained at 700 Kelvin temperature. In the catalytic chamber, we are having our catalyst, that is your aluminum oxide, potassium oxide, and iron oxide. In presence of these catalysts, the reaction will occur and nitrogen and hydrogen will combine together to form ammonia. The ammonia so formed may exist in gaseous phase because the temperature is very high, that is 700 Kelvin. Hence, it is passed through a long pipe with a lot of turns such that ammonia gets cooled down, and hence we get liquid ammonia at the end of the pipe. So we are getting liquid ammonia. Now this liquid ammonia will form an equilibrium and form nitrogen and hydrogen again. That nitrogen and hydrogen is again collected through a pipe and sent through a pump so that it can be reutilized. क्या सबको ये बात समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ही लेफ्ट हैंड साइड पेज में सबसे नीचे में देखो क्या लिखा हुआ है. Earlier, iron was used as catalyst with molybdenum as promoter. यही बताया था कि नहीं मैंने आप लोगों को? पहले हम लोग molybdenum को यूज कर रहे थे, जो कि काफी कॉस्टलियर हो रहा था हम लोगों के लिए. बट अब हम लोग आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेते हैं. इट इज अ मच मोर चीपर एंड इजीली अवेलेबल मटेरियल एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ योर finely divided iron with that of your molybdenum. क्या ये क्लियर है सर? Yes, sir. Okay. Now let us move ahead and we will understand the properties of ammonia. Let us understand the properties of ammonia. First of all, ammonia is a colorless gas, but it has a pungent odor. We all have smelled ammonia, yes or no? Most of you have, right? Yes, sir. It is a colorless gas, but it is having a pungent odor.
Its freezing and boiling points are given to us, sir. 198.4 degrees Celsius is your freezing point. That means 198.4 Kelvin is your freezing point. That means minus में है temperature. And 239.7 Kelvin is your boiling point, जो कि फिर नेगेटिव में है। इसीलिए एमोनिया जो है हम लोगों को रूम टेम्परेचर में जनरली गैसियस फेज में मिलेगा। उसको हम लोग एमोनिया का सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में डिसॉल्व करके, तो हम लोगों को एमोनिया सोल्यूशन मिलता है। अदरवाइज एमोनिया जो है गैसियस फेज में ही रहेगा। क्या ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, So sir. the first thing is it is a colorless gas. The second thing is it is having a pungent odor. So these things we have already seen it in our lab, so that is why nothing much here. But we talk about the freezing point and as well as your boiling point. Here we see something strange. The freezing point and boiling point both are in negative. That means ammonia at room temperature will always exist in your gaseous phase. Next, in the solid and liquid states, it is associated through hydrogen bonding. Yes, हम लोगों को पता है सर, NH3 मॉलिक्यूल जो है उसका शेप क्या होता है सर? NH3 एक टेट्राहेड्रल शेप मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम लोग ट्रायगोनल पिरामिडल भी बोल सकते हैं। इसका एक लोन पेयर रहता है और 3 बॉन्ड पेयर रहते हैं सर। अब यहाँ पे क्या होता है, एज द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, यहाँ पे एक NH3 और दूसरे NH3 के बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Very good. Okay. So, as in the case of water, and accounts for higher melting and boiling points than expected on the basis of its molecular mass. तो अगर आप लोग देखेंगे NH3 का molecular mass, okay, ये बहुत ही small है। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 14 + 3 17 ग्राम्स का मॉलिक्यूलर मास रहता है। इतना कम मॉलिक्यूलर मास के साथ भी ये लिक्विफाई हो सकता है, ओके, जो कि काफी स्ट्रेंज है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है कि ये लिक्विफाई हो पा रहा है, ये क्यों हो पा रहा है? इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट ये काफी लार्ज है बाकी के कंपेयर में, मतलब PH3 के कंपेयर में, ASH3 के कंपेयर में, बिस्मथ हाइड्राइड के कंपेयर में। क्यों बोलने से आप लोग बोलेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir, very good. The ammonia molecule is trigonal pyramidal with the nitrogen at the apex. Nitrogen at the apex matlab at the center almost. Okay, now it has 3 bond pairs and 1 lone pair, जो कि मैं already बता चुका हूँ, as on in the structure. Ammonia gas is highly soluble in water. यहाँ ICSE students कितने हैं सर? हमारे क्लास में ICSE स्टूडेंट्स कितने हैं? आयुष है, राहुल परिडा है, ओके, Yes, sir. और भी शोभित है, और भी कुछ कुछ लोग हैं। आप लोग अपने 10th क्लास के टेक्स्ट बुक में क्या आप लोगों ने एमोनिया, एक चैप्टर था आप लोगों का, वहां पे क्या आप लोगों ने ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना सर? द ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. यस, तो ये एक ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट हो जाता है सर, जो कि हमारा एमोनिया का सॉल्युबिलिटी को डिस्क्राइब करता है। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेते हैं, इसमें एक कॉर्क डाल देते हैं हम लोग। ये कॉर्क में हम लोग क्या करते हैं सर, 2 होल्स करते हैं, ओके। एक होल में हम लोग क्या करते हैं, एक ड्रॉपर अटैच कर देते हैं, दिस इज अ ड्रॉपर, और दूसरा होल में एक डिलीवरी ट्यूब लगाते हैं हम लोग, और फिर इस डिलीवरी ट्यूब को हम लोग डाल देते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। इसमें क्या है, इसमें वाटर है, along with water इसमें हम लोग एक इंडिकेटर डाल देते हैं, ओके, which turns red into blue if it is basic, ओके, वो वाला हम लोग एक इंडिकेटर डाल देते हैं इसमें, और इस फ्लास्क को हम लोग एमोनिया से फिल कर देते हैं। अब क्या करेंगे सर, हम लोग थोड़ा सा ये जो हमारा ड्रॉपर है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। तो क्या होगा, थोड़ा सा ये ड्रॉपर क्या करेगा, एयर सक कर लेगा यहाँ से।
जैसे ये एयर को सक करेगा, आपका डिलीवरी ट्यूब क्या करेगा, यहां से वाटर को सक करेगा। जैसे ही वाटर थोड़ा ऊपर आता है, एमोनिया उसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है, आप लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा फाउंटेन जैसा दिखता है। ये फाउंटेन जो है आप लोगों का ब्लू कलर का फाउंटेन दिखेगा। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. दिस इज द ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, जो हम लोगों को समझाता है कि एमोनिया वाटर में कितना ज्यादा सॉल्युबल है, कि जितना भी वाटर वहां पे आ रहा है, एमोनिया उसमें ज्यादा डिसॉल्व हो जा रहा है। जिसके वजह से देखो, ये फाउंटेन क्यों बन रहा है? ऐसे में कोई भी गैस लेने से फाउंटेन नहीं बनता है। फाउंटेन इसीलिए बन रहा है क्योंकि ज्यादा एमोनिया इसमें डिसॉल्व हो जा रहा है। तो फ्लास्क के अंदर एयर क्या क्रिएट हो रहा है? वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वाटर नीचे से ऊपर सक हो जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस। Yes. तो यहां से हमें समझ में आता है, ओके, यहां से हमें समझ में आता है कि सर द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ एमोनिया इन वाटर। यस, हम लोग HCl के साथ करेंगे तो रेड कलर का फाउंटेन आएगा, करेक्ट है। अगर हम लोग HCl के साथ करेंगे तो रेड कलर का फाउंटेन आएगा। वेरी गुड। नाउ एमोनिया इज वीकली बेसिक इन नेचर। Okay, ammonia is weakly basic in nature. कैसे? Because ammonia when added in water, what will it form, sir? It will form ammonium ion NH4 plus, and along with that it will release OH minus. And OH minus कोई भी कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व करने से अगर OH minus रिलीज होता है, ऑब्वियसली वो बेसिक होता है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस सर। यस बट सर। इट इज अ वीक बेस एंड हेंस ये हमेशा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से हम लोग को क्या मिलता है, देखिए ये रिएक्शन हम लोगों को बेसिक नेचर एक्सप्लेन करता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, ammonia gas is highly soluble in water. This has been done. It forms ammonium salts with acids like HCl, H2SO4. ओके, इनके साथ ये सिंपली क्या बनाता है सर? सॉल्ट्स बनाता है। तो हम सबको पता है एमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl will give us ammonium chloride NH4Cl, and again ammonia with H2SO4 will form nothing but ammonium sulfate, that is nothing but NH4 whole 2 SO4. Okay, so ammonia with HCl will give us ammonium chloride. They will form salts of ammonium when they are treated with any acid. In the same way, ammonia का एक बहुत ही important सा use है सर। एमोनिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यूज है। एमोनिया कैन बी यूज्ड in order to identify the cation which is present in the salt. मेरे सॉल्ट में कौन सा कैटायन प्रेजेंट है वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं उस सॉल्ट का सॉल्यूशन को एमोनिया के साथ ट्रीट करके। चलिए वो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उससे पहले क्या आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गया? एमोनिया बेसिक इसीलिए है क्योंकि वाटर के साथ वो OH माइनस रिलीज करने की कैपेसिटी रखता है। नंबर 2, वो कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करने से सॉल्ट बनाता है बिकॉज वो खुद एक बेस है। क्या ये समझ में आया? यस सर आया। Yes. ओके, अगर ये समझ में आया, नाउ लेट अस मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड कैसे लोग कोई भी कैटायन का प्रेजेंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखिए सर, इफ आई एम हैविंग जिंक सल्फेट, I am having a salt in which there is presence of a cation, that is your zinc cation. I am having zinc sulfate. So a solution of zinc sulfate, aqueous solution of zinc sulfate I'll take and I'll treat it with ammonium hydroxide. देखिए सर, ammonium hydroxide मतलब nothing but liquid ammonia. That means aqueous ammonia is otherwise called as ammonium hydroxide because देखिए तो NH3 plus water क्या देगा हम लोगों को? NH4 plus OH minus, that is nothing but NH4OH. तो यस। aqueous solution of ammonia itself is nothing but your ammonium hydroxide. तो चलिए, so what happened? I am taking zinc sulfate and I am treating it with ammonium hydroxide. क्या होगा सर? Immediately the zinc will form an hydroxide, that is zinc hydroxide, ZnOH whole 2, and along with that
you will have ammonium sulfate, that is NH4 whole 2 SO4. Now, by seeing the color of this zinc hydroxide, which is white precipitate, we can identify, yes, that means zinc present था. Okay, means वो salt जो भी आप हमें दिए थे उसमें zinc present था. चलो, ये तो मैं बताऊंगा कौन प्रेजेंट था तो कैसा कलर आएगा, क्या होगा, बट उससे पहले हम लोग एक सेंटेंस पढ़ते हैं. यहाँ पे देखो, it precipitates hydroxides, hydrated oxides in case of some metals, of many metals, from their salt solutions. कोई भी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन में से उसके हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट करने का कैपेसिटी रखता है हम लोगों का अमोनिया. So any salt solution, aqueous solution of any salt, if we are having, if we are treating it with ammonia, then the metal's respective hydroxide will be produced. That metal's respective hydroxide will be produced. क्या ये समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes, sir. एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है? ये स्टेटमेंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए एक और रिएक्शन देखते हैं. से फॉर एग्जांपल हम मेरे पास है फेरिक क्लोराइड FeCl3. इसको से फॉर एग्जांपल कौन सा है, एक्वस सॉल्यूशन है. से फॉर एग्जांपल इसको मैंने अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन दैट इज NH4OH के साथ ट्रीट किया, तो ये इमीडिएटली क्या बनाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. हाइड्रेटेड मतलब इसके साथ थोड़ा वाटर मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं Fe2O3.XH2O. इसका कलर क्या रहता है सर, ब्राउन कलर रहता है. ये एक ब्राउन प्रेसिपिटेट बना सर ये रस्टिंग का ही फॉर्मूला. along with that ammonium chloride, that is your salt बनता है. ओके सो सर बोलो बेटा. सर ये रस्टिंग का ही फॉर्मूला है. कोई कुछ बोल, ये रस्टिंग का फॉर्मूला, रस्ट का ही फॉर्मूला है. यस, बिकॉज ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट बन रहा है Fe2O3.XH2O, ये हम लोगों का रस्ट का ही फॉर्मूला है. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इटसेल्फ इज रस्ट, सो हम लोगों का अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में फेरिक क्लोराइड इमीडिएटली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ही बनाता है. तो आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा सर क्या है स्टेटमेंट. लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए. इसके नीचे ये दोनों रिएक्शन लिखने के बाद इसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो आप लोग लिखेंगे. whenever aqueous solution of ammonia, whenever aqueous solution of ammonia is treated with, whenever aqueous solution of ammonia is treated with an aqueous solution of a salt is treated with an aqueous solution of a salt, respective metal hydroxide or hydrated metal oxide or hydrated metal oxide is produced as product, or hydrated metal oxide is produced as product. Yes क्या sir. ये क्लियर है सर? Yes sir. Yes. So I hope you people have understood this, and I want you people to remember these reactions till here. Okay, tomorrow what we will be doing is we will be learning how to identify a respective cation by simply treating it with the solution of ammonia. वो पढ़ के हम लोग यूजेस पढ़ लेंगे तो हमारा अमोनिया खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम लोग नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे और फास्फोरस और उसके कंपाउंड्स पढ़ेंगे. 15th ग्रुप खत्म हो जाएगा, राइट? सो I want you people to concentrate and read. जिस दिन का उस दिन आप लोग पढ़ लेंगे तभी जाके आप लोगों को पी ब्लॉक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ बहुत कुछ है जो कि क्लास में ही याद हो गया होगा, और जो बचा हुआ है आप लोग दोबारा इसको पढ़ के याद कर लीजिए. ठीक है, we will meet again in our next class. Till then have fun. चलिए बाय बाय.